Good evening, readers. This is Rakhi Narayan, and I'm going to read an article from the Speaking Trees section of Times of India. The title of the article is The Hue and Cry Over Sanatan Dharma. तो इसका अर्थ है सनातन धर्म पर हाहाकार. And this article has been written by Narayani Ganesh. So let's start with the article. The Sanskrit word Sanatan means eternal, everlasting, unshakable, ancient. And the word dharma refers to a code of proper conduct conforming to one's duty and nature. Sanatan Dharma is not linked directly to any religion other than perhaps having something in common with all enabling faiths that promote universal eternal values, good conduct, and conscientious execution of one's duty to self, family, friends, society, and the universe. Sanatan Dharma is a beautiful concept and, yes, promoted in the Hindu way of life. That could be why, over time, as is the case with all the different interpretations of scriptures, traditions, and cultural practices, it has come to be identified by some Hindus as being synonymous with what they call the Hindu religion. The term Hinduism refers not really to a religion but to a way of life that is porous, all embracing, life enabling, and inclusive. तो चलिए इसका अर्थ बताती हूँ. सनातन धर्म एक संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ है शाश्वत, अटल और प्राचीन. और धर्म का अर्थ होता है किसी के कर्तव्य और स्वभाव के अनुरूप उचित आचरण की संहिता को संदर्भित करना. सनातन धर्म सीधे तौर पर किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है और सनातन धर्म में जो जिन चीज़ों को बढ़ावा दिया गया है वह है अच्छे आचरण का प्रतीक और अच्छे आचरण का प्रतीक स्वयं, परिवार, दोस्तों, समाज और किसी के प्रति कर्तव्य की बात की गई है. सनातन धर्म एक सुंदर अवधारणा है और हाँ, इसे हिंदू जीवन शैली में प्रचारित किया गया है. यही कारण है कि समय के साथ जैसा कि शास्त्रों, परंपराओं और सांस्कृतिक प्रथाओं की सभी अलग अलग व्याख्याओं के मामले में होता है, कुछ हिंदुओं द्वारा इसे उस चीज़ के पर्याय के रूप में पहचाना जाने लगा है जिसे वे हिंदू धर्म कहते हैं. हिंदू धर्म शब्द वास्तव में किसी को संदर्भित नहीं करता है, लेकिन यह एक जीवन जीने का एक तरीका है और इसमें बहुत सारी चीज़ें सनातन धर्म से मिलती जुलती है. So let's start again. Therefore, to imprison the concept of Sanatan Dharma in a cage that is circumscribed by a religion, and that too be strident promoters who see themselves as the sole guardians of this artificial construct, is to disrespect the very lofty notion of universality, eternity, and inclusiveness that Sanatan Dharma symbolizes and upholds. Tamil Nadu Chief Minister Stalin's son and Minister Udyanidhi's lashing out against Sanatan Dharma, calling for its abolition, is not a reflection on the concept of Sanatan Dharma. It is a reaction prompted by anger against discriminative practices that have come to be erroneously associated with Sanatan Dharma. Although the Dravida Kazhagam, DK, DMK, and their offshoots all claim to be non believers, several of their members pray in their homes. तो इसका अर्थ है कि जो सनातन धर्म को हम पिंजरे में बंद करने की बात कर रहे हैं, जो कि एक धर्म से घिरा हुआ है और वह भी कट्टर प्रवर्तकों द्वारा जो खुद को इस कृत्रिम निर्माण के एकमात्र संरक्षक के रूप में देखते हैं, वो गलत कर रहे हैं. क्योंकि वह एक जो सनातन धर्म है उसकी जो अवधारणा है सार्वभौमिकता और अनंत काल से चली आ रही ये सनातन धर्म, उसका अनादर करना है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि का सनातन के खिलाफ हमला बोलना, इसके उन्मूलन का आह्वान करना सनातन धर्म की अवधारणा पर प्रतिबिंब नहीं है. यह एक भेदभावपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ गुस्से से प्रेरित एक प्रतिक्रिया है जो गलती से सनातन धर्म से जुड़ी हुई है. हालांकि द्रविड़ कड़गम, टीके, डीएमके और उनके जो सभी शाखाएं हैं अविश्वासी होने का दावा करती हैं. उनके कई सदस्य अपने घरों में प्रार्थना करते हैं. Let's start again.
Faith is, after all, something private. It need not be hung out there for public display. And one's faith ought not to have anything to do with making policy decisions if one is a neta or in a position of governance and authority. When Periyar E.V. Ramaswamy Naikar, founder of DK and the self-respect movement, encouraged destroying roadside temples and upheld atheism, it was his reaction to the high-handedness and discrimination practiced by some section of the priestly class. Urged by their so-called faith-induced behavior, he decided to simply overturn everything that was predicated on religion. Perrier was an intellectual with progressive ideas, and he promoted an egalitarian, inclusive outlook that saw all human beings as equals. In essence, this is what Sanatan Dharma also upholds. So there is no conflict of interest here. तो हम शुरुआत करते हैं हिंदी में. तो ये जो यहाँ पे बात हो रही है कि उनके जो सदस्य हैं वो सब घरों में प्रार्थना करते हैं. आस्था आखिरकार एक निजी चीज़ है. इसे सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए लटकाने की ज़रूरत नहीं है, और यदि कोई नेता है या शासन और अधिकार की स्थिति में है तो उसकी आस्था का नीतिगत निर्णय लेने से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए. जब पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जो डीके के संस्थापक हैं, और जब स्वाभिमान आंदोलन हुआ तो सड़क के किनारे के मंदिरों को नष्ट करने के लिए उकसाया और नास्तिकता को बरकरार रखा. यह उनकी मनमानी के प्रति प्रतिक्रिया थी और पुरोहित वर्गों के प्रति प्रतिक्रिया थी. उनके तथाकथित आस्था जो प्रेरित व्यवहार जो उनके तथा जो ये जो पुरोहित वर्ग थे, उनके तथाकथित आस्था प्रेरित व्यवहार से चिढ़कर उन्होंने ऐसा किया. उन्होंने धर्म पर आधारित हर चीज को पलटने का फैसला किया. पेरियार प्रगतिशील विचारों वाले बुद्धिजीवी थे और उन्होंने एक समतावादी समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जो सभी मनुष्यों को समान मानता था. तो यहाँ पर जो सनातन जो धर्म है वो उसका समर्थन करते हैं. तो यहाँ पे उनकी तरफ से कोई विरोध नहीं है. Let's start again. So the fact is that in the beginning, before foreign incursions, the Hindu way of life did not have a name. It followed the Sanskrit dictum, Ekam Sadvipra Bahuda Vadanti. The truth is one, the wise speak of it in different ways. And therefore it came about the Westerners began to call it Hinduism and the name stuck. But to use the term Sanatan Dharma and Hinduism in the same breath is an anomaly, as the former refers to a universal, eternal principle, while the later refers to what has come to be viewed as a religion that is set in its ways. While Sanatan is eternal and universal, Dharma could vary from person to person. Therefore, to equate the highly intellectual, progressive and inclusive Sanatan Dharma with any religion that is set in its way would be oxymoronic. तो हिंदी में जानते हैं इसका अर्थ. तो तथ्य यह है कि शुरुआत में विदेशी घुसपैठ से पहले हिंदू जीवन शैली का कोई नाम नहीं था. यह संस्कृत की उक्ति जो है एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती का पालन करती थी. इसका अर्थ है सत्य एक है, बुद्धिमान इसे अलग अलग तरीकों से बोलते हैं. और इसलिए ऐसा हुआ कि पश्चिमी लोग इसे हिंदू धर्म कहने लगे और यह नाम चिपक गया. लेकिन एक ही सांस में सनातन धर्म और हिंदू धर्म शब्दों का उपयोग करना एक विसंगति है, क्योंकि पूर्व जो सनातन धर्म है एक सार्वभौमिक शाश्वत सिद्धांत को संदर्भित करता है, जबकि जो बाद वाला है जो हिंदू धर्म है उस चीज़ को संदर्भित करता है जिसे एक ऐसे धर्म के रूप में देखा जाता है जो अपने आप में स्थापित है, उसके अपने तौर तरीके हैं. जबकि सनातन धर्म शाश्वत और सार्वभौमिक है. और धर्म जो है व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग हो सकता है. इसलिए अत्यधिक बौद्धिक, प्रगतिशील और समावेशी सनातन धर्म को इसके तरीकों में स्थापित किसी भी धर्म के साथ जोड़ना विरोधाभासी है. तो मैं अंत में ये कहना चाहूँगी कि हमें सनातन धर्म को समझने की
कोशिश करनी चाहिए। और इस आर्टिकल से ये समझ में आता है कि सनातन धर्म जो है बहुत ही अंतकाल से चला आ रहा है और ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। और ये जो बातें बताता है ये हमारे जीवन शैली के बारे में बताता है कि हमें कैसे जीना चाहिए और हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो इसे सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। So thank you readers for listening me. Thank you.